Do you want to study in IIMs right after class 12? Do you want to do your graduation from one of the most prestigious institutes of the country? Do you want to pursue management from top B schools in this country? Then watch this video till the end and I'll tell you everything about IPMAT and how you can get into an IIM right after class 12. So hi guys, my name is Rudraksh and I'm a third year student in the IPM program at IIM Rohtak. जी हाँ, I'm back at the campus and in this last 1 month के phase में I've got so many DMs on my Telegram कि भैया I want to pursue management, मैंने साइंस लिया था, now I want to switch into management, मेरे को इंजीनियरिंग या मेडिकल या CA में फॉर इनफैक्ट उतना इंटरेस्ट नहीं है and I want to do management and study from IIM. So मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने IPMAT के बारे में सुना है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है. There are a lot of questions, so I thought I'll make an entire video on everything about IPMAT from 0 to 100. Okay, so I'll explain everything: the course structure, the placements, the seat matrix, the eligibility criteria, everything in this single video. And if you want to see more such videos, then make sure you're subscribing to this channel and liking this video. So मैंने इस वीडियो को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके रखा है एंड यू कैन चेक आउट ईच पार्ट अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इन द टाइम स्टैम्प. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट्स दैट आई रिसीव इज भैया इज इट मैंडेटरी फॉर मी कि मेरे को ग्रेजुएशन होना करना जरूरी है आईएम्स में एंट्री के लिए? तो ऐसा नहीं है. आईपीएम प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स टू गेट इनटू एन आईएम राइट आफ्टर क्लास 12. सो इट डजंट मैटर कि तुम्हें ग्रेजुएशन करने के obviously graduation के बाद तुम डायरेक्ट कैट एग्जाम लिख सकते हो which is the exam to get into an IIM. If you don't want to write CAT exam and directly IPM में आना है, so you can prepare for IPMAT. IPMAT टेस्ट के बारे में आगे आते हैं, so you can definitely prepare for it and get into an IIM. भैया क्या इसके लिए कोई स्ट्रीम मैंडेटरी है? मैंने तो साइंस ले रखी है, क्या सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स अ स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम. Anyone from let's say science background, from arts background, from commerce background, from medical background can study management, can get into an IIM through IPMAT. So the colleges that offer IPM program are particularly सबसे famous तो है IIM Indore, IIM Rohtak, IIM Ranchi, IIM Bodh Gaya, IIM Jammu. These are all 5 IIMs that offer IPM program. We'll focus on the conventional IPM program where you get entry into the IIM straight after 12. And if you want to clear IPMAT and join IIM right after class 12, then enrolling in a coaching can help you in your preparation. And for that specifically, Physics Wala has launched 2 new batches: IPMAT Master Quest 2025 batch and IPMAT Pro 2025 batch. In the Master Quest batch, you will get access to recorded sessions, live lectures with experienced faculties, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock test series and 24/7 doubt support. And if you're looking for something more, something better, then you can always go for IPMAT Pro 2025 batch. You'll get everything available in the Master Quest batch along with access to the batches that will be launched in 2024, along with access to all the batches that were launched last year. Not only that, you will get not 15 but 30 plus mock tests and all that at a heavily discounted price. And if you use my code RPS500, you will get an additional discount. So go start your preparation. I've given the link in description and comment. Talking about the exams that you have to appear for to get into an IIM are usually 3 main exams. वैसे होते तो 4-5 है, like NFAT होता है तुम्हारा NFSU में जाने के लिए, but we won't be talking more on that. We'll be focusing on the test for specifically the 5 IIMs: Indore, Rohtak, Ranchi, Bodh Gaya and Jammu. So for Indore we have IPMAT Indore, and IPMAT Indore सिर्फ इंदौर के लिए नहीं बल्कि 10 डिफरेंट कॉलेजेस भी इसका स्कोर लेते हैं, जैसे तापमी, NFSU, IFT काकीनाडा एंड ऑल अदर कॉलेजेस, निर्मा यूनिवर्सिटी. सो दीज आर ऑल द अदर कॉलेजेस जिनके जो IPMAT इंदौर का स्कोर लेते हैं. सो मेक श्योर कि इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर IPMAT इंदौर, यू आर ऑल्सो सेपरेटली रजिस्टरिंग फॉर ऑल द कॉलेजेस दैट यू वांट टू अप्लाई टू, क्योंकि उनके लिए तुम्हें स्पेसिफिकली कोई टेस्ट नहीं देना होगा. दे डायरेक्टली टेक IPMAT इंदौर का स्कोर एज देयर एप्टीट्यूड स्कोर. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. तुम्हें एक टेस्ट लिखने and so many colleges get covered. Apart from it, we have if you want to get into IIM Rohtak, the college where I am studying currently, you have to write IPMAT Rohtak.
and also in the IPMAT इंदौर से you can get admission into IIM Ranchi because IIM Ranchi को कोई specific exam नहीं होता है. The college also takes its score from IPMAT इंदौर. So IPMAT इंदौर से multiple colleges cover हो रहे हैं. So make sure you're registering for IPMAT इंदौर as well as those other colleges like IIM Ranchi, Nirma, IFT Kakinada and all. And the third one is JIPMAT. So JIPMAT is called Joint Integrated Program Management Aptitude Test. So it's the joint test for both IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. So yes, you have to write these three exams: IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT. तो अब इन एग्जाम की डिटेल्स के बारे में बात कर ले. सो एग्जाम की डिटेल्स की अगर बात करें, सो टॉकिंग अबाउट आईपीमैट इंदौर. आईपीमैट इंदौर में 3 सेक्शंस होते हैं. यूजुअली किसी साल में इसका पैटर्न बदल जाता है, बट द रीसेंट पैटर्न दैट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट 2 years इज वी हैव क्वांट्स शॉर्ट आंसर, क्वांट्स एमसीक्यू एंड वर्बल एबिलिटी. क्वांट शॉर्ट आंसर क्या होते हैं? क्वांट शॉर्ट आंसर इज अ सेक्शन वेयर यू हैव टू मैन्युअली फीड इन द आंसर. वहां पे तुम्हें कोई ऑप्शंस नहीं दे रखे होंगे. देयर वुड बी वन आंसर बॉक्स एंड दैट यू हैव टू टाइप योर आंसर इन दैट आंसर बॉक्स. सो यूजुअली 15 क्वेश्चंस अपीयर फ्रॉम क्वांट्स अपीयर इन क्वांट्स ऐसे. देन कम्स क्वांट्स एमसीक्यू सेक्शन. अनलाइक क्वांट्स का ऐसे सेक्शन, ये क्वांट्स का एमसीक्यू सेक्शन में यू विल हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू there will be 30 questions like this in the quants MCQ section. And then comes the last verbal ability section. In verbal ability section, it's the English section that is commonly known. So it has 45 questions. So ultimately 15, 30, 45. So total comes out to be 90 questions. The marking scheme is +4 for a right answer and -1 for a wrong answer. So the total marks for the exam is 360 marks. And one more important thing to note about IPMAT Indore is कि इसमें कोई overall cut off नहीं होता है, but sectional cut off होता है. जैसे for example, for suppose कि let's say कि essay का section का cut off है let's say 20, MCQ के cut off है 30 and verbal ability के cut off है 110. सपोज मैंने क्वांट्स एसए और क्वांट एमसीक्यू के कट ऑफ्स पार कर लिए एंड बाय अ मार्जिन ऑफ लेट्स से 40-50 मार्क्स, इतने ज्यादा मार्जिन से. बट अगर मैं वर्बल एबिलिटी के सेक्शनल को लेट्स से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स से नहीं क्रॉस कर पाया, आई वोंट बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड इन आईपीमैट इंदौर. नो मैटर तुमने पिछले सेक्शंस में कितना ज्यादा हाई स्कोर किया हो. ऑब्वियसली हाई स्कोरिंग हेल्प्स यू इन फर्दर प्रोसेस, बट अगर तुम्हारे कट ऑफ्स नहीं मीट हो रहे होंगे, so probably क्या you won't be getting any call for the interviews. But IIM Ranchi जब इसका स्कोर लेता है, it doesn't consider sectional cutoff, it considers overall cutoff, which is usually 10-15 marks more than the overall cutoff of Indore. Talking about IPMAT Rohtak में भी 3 सेक्शन होते हैं, but here's the change. How is it different from IPMAT Indore? जहां IPMAT इंदौर में 2 क्वांट्स के सेक्शन थे और 1 वर्बल का सेक्शन था. Here we have 1 क्वांट्स का सेक्शन of 40 क्वेश्चन, 1 वर्बल का सेक्शन of 40 क्वेश्चंस and 1 लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन of 40 questions. That comes out to be 120 question, that is 480 marks. Again, the marking scheme is same, +4 for correct, -1 for wrong. And यहाँ पे usually the paper difficulty level is, I would say, moderate या उससे कम. And IPMAT इंदौर का जो लेवल है, that is very high. I would say, suggest on a scale of difficulty, I would rank it very high as compared to IPMAT Rohtak. Then comes the JIPMAT exam. JIPMAT में भी again same pattern होता है, quants, verbal and DILR. Instead of logical reasoning, they call it data interpretation and logical reasoning. So quants में तुम्हारे 33 questions होते हैं, verbal में DILR में तुम्हारे 33 question होते हैं and verbal में 34 question होते हैं. So that comes out to be 100 question. Again, marking schemes came same, +4 for correct, -1 for wrong. That comes out to be 100 questions, 400 marks paper. And cut-offs की बात करें तो this year's admission process 2024 के IPMAT Rohtak के we have the cutoff is around 310ish, I would say. So anywhere if you're scoring above 370, 380, this is my own opinion, then you're good to go in IPMAT Rohtak. Obviously you should target 400, but 370, 380 will also give you an upper edge over your other competition. And one more point to note, like IPMAT Indore, Rohtak और JIPMAT में कोई sectional time नहीं होता है, ना sectional cutoff होता है. Both Rohtak and JIPMAT have an overall cutoff and not sectional cutoff.
अब सिर्फ रिटन एग्जाम की बात कर ली है तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। क्या भैया सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एग्जाम नहीं होते? नहीं, दिस इज व्हाट इट सेपरेट्स फ्रॉम अदर एग्जामिनेशन जहां पे सिर्फ तुम सिर्फ एक एग्जाम लिखा एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, इट्स अ मल्टीपल स्टेज प्रोसेस। सो यूजुअली इंटरव्यूज इज अ बिग कंपोनेंट ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो वेटेज वाइज अगर मैं सेग्रीगेट करूं, सो फॉर आईपीमैट इंदौर और आई एम इंदौर अपने एप्टीट्यूड टेस्ट आईपीमैट इंदौर को सिलेक्शन प्रोसेस में 65% वेटेज देता है एंड इंटरव्यूज को 35% वेटेज देता है। एंड दैट्स सच अ ह्यूज डील कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आई हैड अ स्कोर ऑफ 204 मार्क्स आउट ऑफ 360 इन 2022 एग्जाम। सो एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 111. One of my batchmates who is also in IIM Rohtak, he got a score of 224 marks. 20 marks more than me, and 20 marks, believe me, is a huge deal. जब तुम लोग मॉक्स लगाओगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि ओके 20 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होते हैं। एंड स्टिल हिज ऑल इंडिया रैंक वाज लोअर देन मी. He was 100 and 15ish or 113ish. Another example, as I said, मेरे 204 marks थे and 111 rank थी. There was this girl again in my batch. She had a score of 209 marks, but she had an all India rank of 211. तो भैया इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों है कि आपसे इतने ज्यादा मार्क्स है बट स्टिल आपसे रैंक उनकी कम है, कि मेरी रैंक उनसे ऊपर है? द होल रीजन इज इंटरव्यूज. मैं इंटरव्यू इज माई स्ट्रॉन्ग फोर्टी. सो मैं अपने इंटरव्यू में मैं जाता था तो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं किल करके आऊंगा इंटरव्यू को. सो दिस इज द थिंग. शायद से प्रॉब्ली उनके कॉम्पोनेंट में मिसिंग थी. सो दैट इज हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द इंटरव्यू कॉम्पोनेंट in your entire selection process. It holds 35% weightage in your IPMAT Indore. रोहतक की बात करें तो रोहतक 45% IPMAT रोहतक एप्टीट्यूड टेस्ट को देता है. देन 40% तुम्हारे 10th एंड 12th को वेटेज देता है. दैट्स अ ह्यूज परसेंटेज. 10th को 20% वेटेज देता है, 12th को 20% वेटेज देता है. तो अगर तुम्हारे अकेडमिक कंपोनेंट को 40% टोटल वेटेज मिला, यानी जिन बच्चों के 10th एंड 12th में काफी अच्छे मार्क्स है, दे हैव एन एडवांटेज ओवर पीपल जिनके शायद से उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, स्पेशली आईपीमैट रोहतक में. हाँ, IIM इंदौर में ऐसा कोई नहीं है. दे डोंट गिव एनी वेटेज टू योर पास्ट अकेडमिक्स. So 45% goes to IPMAT Rohtak, 40% goes to past academics, and the rest 15% is the interview component in your selection process of IIM Rohtak. Talking about IIM Ranchi में usually सिर्फ क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम को जो IPMAT इंदौर का स्कोर है उसको 50% वेटेज मिलती है. 20% वेटेज तुम्हारे 10th एंड 12th को मार्क्स को मिलती है. मतलब 10% 10% 10th को, 10% 12th को, एंड 30% अगेन इंटरव्यू कंपोनेंट होता है. तुम देख रहे हो इंटरव्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा इंटरव्यू मतलब थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं है, वैसे इंटरव्यू की चिंता तुम लोग मत करना. इंटरव्यू की चिंता मुझ पे छोड़ दो. मैं प्रॉपर तुम लोगों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा दूंगा. बट जब इंटरव्यू की बारी आएगी तब, अभी अपने को कट ऑफ क्लियर करना मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए. बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, होता है कई लोगों का, सो देन वी हैव जिपमैट is the only exam जहां पे तुम्हें इंटरव्यूज नहीं देने. It takes, IIM बोधगया and IIM जम्मू takes 100% weightage of the real exam only, कि तुमने सिर्फ जिपमैट का जो एग्जाम लिखा है उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होगा. हाँ, बट ये कॉलेजेस जेंडर डाइवर्सिटी को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं. सो स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट यू विल गेट सम एडिशनल बोनस मार्क्स इन द जिपमैट एंट्रेंस एग्जाम. सो टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जाम, योर एज शुड बी 20 or less than 20 to be actually able to sit for this exam, and you should be you should have a minimum of 60% in your 10th and 12th. देखो यूजुअली ये जो एज वाला एंड मिनिमम 10th and 12th परसेंटेज है, ये मैं अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ. फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी इट इज अ लिटिल डिफरेंट. मैं तुम्हें इनके IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची, बोधगया, जम्मू, इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स की लिंक दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना. एंड वहां पे जाके तुम स्पेसिफिकली अगर तुम्हारी अपनी कैटेगरी के लिए कोई कोई कंसेशन है, कोई रिलैक्सेशन है, लाइक देयर इज 55 इंस्टेड ऑफ 60% इन 10th एंड 12th फॉर सम रिजर्व कैटेगरीज लाइक SC एंड ST, इट्स जस्ट 55%. तो वो तुम वहां से जाके चेक कर लेना. एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब
एंड ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग कि भैया तुमने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, तुमने मेरे चैनल पे देखी होंगी, काफ़ी सारे मैं वीडियो स्ट्रैटेजीज को लेके बनाता रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन को लेके बनाता रहता हूँ. सो इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ, पर्सनली तुम्हारे साथ बैठूँ, so make sure you can get on a strategy call with me for you can fill this form in the description. मैंने first link दे रखी है, उसको जाओ, get on a strategy call with me. We'll get in on a 30 minutes video call जहाँ पे बैठ के मैं proper तुम्हारा 1 ईयर का रोड मैप तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. अगर तुम्हें उससे ज्यादा और कुछ चाहिए, रीच आउट टू मी ऑन माई टेलीग्राम एंड जस्ट राइट आई एम अ 2025 एस्पिरेंट एंड आई नीड योर मेंटरशिप. जस्ट गो ऑन, मैंने डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का अपना लिंक दे रखा है, जाओ टेलीग्राम चैनल पे, वहां से मेरे को पर्सनली डीएम करो कि आई एम अ 2025 कैंडिडेट एंड आई वांट अ पर्सनल मेंटरशिप. एंड इफ यू वांट कि मैं तुम्हारे लिए आईपीमैट की फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लाऊं कि कैसे कौन सी चीजें करनी है, कब प्रिपरेशन में कौन सी चीज को तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सो मेक श्योर यू आर कमेंटिंग द वर्ड स्ट्रैटेजी एंड आई सून ब्रिंग दैट वीडियो. ओके, सो नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हारा कंपटीशन क्या है. तो यूजुअली देखो, आईपीमैट फील्ड अभी उतनी ज्यादा सैचुरेट नहीं हुई है कंपटीशन से, लाइक अदर एग्जामिनेशन जहां पे लाखों बच्चे बैठते हैं. बट इसका एक अदर फ्लिप साइड भी है कि सीट्स हमारे पास बहुत कम है इन द डिफरेंट आइम्स. तो अगर मैं बात करूं 2024 के रिकॉर्ड्स की, तो मैं रफ फिगर्स बताऊंगा, रफ एस्टिमेट्स. सो अराउंड 30,000 बच्चे आईपीमैट इंदौर का पेपर लिखे थे एंड अराउंड 15 to 16,000 आईपीमैट रोहतक का पेपर लिखे थे एंड अराउंड 7 to 8,000 जिपमैट का पेपर लिखे थे. नंबर्स थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, बट दिस इज द बॉल पार्क फिगर जो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं. टॉकिंग अबाउट कि सीट्स कितनी है, सो मैं तुम्हें एक रेंज बताऊंगा क्योंकि एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज वेरीज द नंबर ऑफ सीट्स बाय 10-20 सीट्स. सो उसको ध्यान में रख के आई विल गिव यू अ रेंज. सो यूजुअली इंदौर में अराउंड 150 to 170 बच्चे सेलेक्ट होते हैं एवरी ईयर. In Rohtak, around 160 to 180 students हर year select होते हैं. In Ranchi, they have reduced the seat number in 2024 to around 60. And I am Bodh Gaya and I am Jammu में 100 to 120 और I would say 130 के बीच में कहीं ना कहीं दोनों कॉलेज में एक्सेप्ट करते हैं. सो अगर तुम कैलकुलेट करो ऑन एन एवरेज बेसिस पे भी देखा जाए कि 150 इंदौर लेता है, अज्यूमिंग 150 रोहतक लेता है, 240 के करीब जम्मू बोध गया की हैं, सो अराउंड तुम कहोगे कि 600 सीट्स मेरे पास आईआईएम्स में है. एंड अगर मोटा मोटा कंपटीशन देखा जाए तो तुम्हारा 30,000 स्टूडेंट्स के करीब का कंपटीशन है. सो 600 सीट्स 30,000 स्टूडेंट्स, दैट इज अराउंड 0.5% का सिलेक्शन रेशियो. बट इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन 30,000 में 90% बच्चे तो मेहनत ही नहीं कर रहे. दे हैव जस्ट फिल्ड द फॉर्म एंड उनको अभी उतना होश नहीं है, या फिर वो उतना सीरियसली ले नहीं रहे, या फिर दे आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. जब एग्जाम डेट तक आएंगे तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड. तो तुम्हारा कंपटीशन टॉप 10% बच्चों से ही है. वो टॉप 3-4-5,000 जो 5,000 बच्चे बचे हैं ना, उनसे है तुम्हारा कंपटीशन. उन 5,000 बच्चों से तुम्हें लड़के अपनी वो 600 सीट्स में से एक सीट बुक करनी है. एंड ये भी नहीं, उन 5,000 में से भी यूजुअली हर कॉलेज, जैसे दिस ईयर आई एम रोहतक शॉर्टलिस्टेड अराउंड 800 स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उन टॉप 800-900 स्टूडेंट्स में आना होगा. सेम वाज फॉर आई एम इंदौर. उन जब 800-900 स्टूडेंट्स में आते हो, देन यू हैव टू फाइट फॉर दोज 150 सीट्स 160 सीट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. तो कंपटीशन टफ है बट कम है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चे बैठ रहे. नहीं, बैठ से 30,000 है, बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. एंड अगर तुम प्रिपरेशन में कहीं पे भी लैक कर रहे हो तो वो शायद से तुम्हें उतना फ्रूटफुल नहीं होगा. सो आई वुड से कि अगर तुम क्लास 12th के साथ अपने प्रिपेयर कर रहे हो कि तुम अभी क्लास 12th में हो और तुम्हें डायरेक्टली जाना है आईएम्स में, सो आई वुड से अराउंड 7 to 8 month ऑफ प्रिपरेशन इज गुड इनफ. कि अगर तुम कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, अब थोड़ा थोड़ा कितना वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे पर्टिकुलर कि तुम्हारा बेस कितना है एंड ऑल. आई वोंट गेट इनटू ऑल दैट स्टफ, बट थोड़ा थोड़ा अगर तुम पढ़ रहे हो, 7 to 8 month इज अ गुड पीरियड. ठीक है. अगर तुम ड्रॉपर हो, है ना, तो तुम्हारे पास तो मतलब देयर आर 2 ड्रॉपर्स, फुल ड्रॉपर और पार्शियल ड्रॉपर. अगर तुम ड्रॉपर हो के ये वीडियो देख रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि
ड्रॉप ईयर में क्या करना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स. सो मेक श्योर यू आर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल लिंक इट इन द आई बटन एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो. बट अगर तुमने ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हो कि एग्जाम अभी 2 महीने बाद पड़ा है, 2 महीने में भी एग्जाम क्लियर होता है, बट ऑब्वियस सी बात है जो इंसान 1 साल से तैयारी कर रहा होगा उसने लेट से x नंबर ऑफ आवर्स डाले एंड तुम्हारे पास अब 1 महीने का ही टाइम बचा है, तो जो उसने x नंबर ऑफ आवर्स पूरे साल में डाले थे, अब तुम्हें वो x नंबर ऑफ आवर्स इन लास्ट के 60-45 डेज में करना है. आई हैव सीन पीपल हु हैव क्रैक्ड आईपीमैट इन 30 डेज आल्सो, बट वो बहुत कम नंबर है. सो उतना लेट के लिए इंतजार मत करना. मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल. अगर तुम्हें कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स है, गो इन माई टेलीग्राम, पर्सनली मैसेज मी and I'll reply you as soon as possible. So that was all from my side. I hope you liked this video and it was informative and has helped you in some or the other way. अगर तुम्हें और भी कुछ preparation से related strategies देखनी है and preparation methods देखने हैं, make sure you're checking my channel out. And yeah, that's it. See ya. Have a good day and see you all at the campus soon. Bye bye.